when you have touched a height like 1.8, 1.8, 1.9 and 2 lakhs per month, वहाँ से 40, 50, 60,000 में आपका रेवेन्यू वापस हिट करना, इट इज काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटिंग। हमें सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट पहले से ही था, डाइट वगैरह बनाना आता है, लेकिन उसको कैसे पैकेज बना के 3 मंथ का प्रोग्राम देना है, 100 डेज का प्रोग्राम देना है या 6 मंथ का प्रोग्राम देना है, वो मेरे को उतना आइडिया नहीं था। तो वो सब भी थोड़ा सा इधर से आइडिया मिला। ये वाला अगर नया कोई कर रहा है तो मैं उन लोग को भी, नया जो ये पॉडकास्ट देखेगा उन लोग को भी है, आपको समवेयर ट्रस्ट बिल्डअप करना है क्लाइंट्स के साथ और एक कम्युनिटी रन करना है। विदाउट रनिंग ए कम्युनिटी यू वोंट बी एबल टू सक्सीड इन ए लॉन्ग टर्म। तो अभिषेक, if somebody is watching this, right, तो आपका जो जर्नी of revenue जो ग्राफ है, right, how did it go from August last year, let's say August of this year? 120% से ज्यादा, 120%, 130% से ज्यादा रेवेन्यू है अभी लास्ट ईयर अगस्त से अगस्त का। Welcome guys to another TGO Heroes podcast where we have today Abhishek Ghosh, who's been working with TGO for almost a year now, and one of the impeccable success stories and very inspirational anecdotes that he'll be sharing with us in this very short and precise podcast. So hi Abhishek, how are you? Thank you Akshay, I am good. First of all, thank you very much for having me here. And चल रहा है, अच्छा से चल रहा है, by God's grace, ठीक ठाक चल रहा है। The way I wanted, उस तरफ I am seeing I am able to move into those directions. Brilliant stuff, Abhishek. And I know you are a busy man. I can see the kettlebells and the a floor mat over there. So I'm sure you would be very busy, and you took out the time. So it was a pleasure having you. So for people who don't know you, Abhishek, would love for you to just tell us a little bit about you and what you're doing right now. Okay, little bit about you in the sense तो काफी लंबा हो जाएगा। In the sense I was in Indian Navy. I served Indian Navy for 15 years. Retirement होके अभी almost 10 years हो गया है। Retirement के बाद when all my batchmates and all of them went to find some secure job in banking, railways and auditing or some stuff, government job, उस time पे I thought of being with the people. So sports, fitness ये सब में starting में था। So I thought of how to make a career out of this, but it was really not that, मतलब सपने में भी इतना स्ट्रगल सोचा नहीं था। वो तो बाहर से अच्छा लगता है ना देखने के लिए कि हाँ फिटनेस कोच है, जिम में बड़ा अच्छा टी शर्ट पहन के क्लाइंट को टीच कर रहा है कोच। The scenario was totally different. In India, especially in India, as a fitness and health coach, the payment structure is almost peanuts compared to outside of India. Okay. And तो वही स्ट्रगल हो रहा था। फिर सोचा कि अपना ही फिटनेस सेंटर खोलो, जो आएगा मेरा ही आएगा। तो वो भी किया, invested a lot of money. Then came the great lockdown of India. तो somehow बहुत सारा पैसा उसमें मतलब इन्वेस्ट किया हुआ था, जो सब पैसा like ओवरनाइट। मैं कोची में रहता हूँ, केरल में रहता हूँ, तो ओवरनाइट आके गवर्नमेंट से आके सील करके चला गया, म्यूनिसिपैलिटी से आके they sealed it overnight. Before the lockdown happened, even in India, Kerala was the worst hit. सबसे पहले हिट हुआ था केरला में। तो क्योंकि ये जिम वगैरह हाई कॉन्टेक्ट एरिया है करके, मैं सुबह जाके देखा, 5 o'clock जाके देखा, जिम was locked and sealed by the municipality. Okay, you can understand क्या हो सकता है। तो वहाँ से this is the time when आप ऑफलाइन ट्रेनिंग कर रहे थे, right? And you were मैं ऑफलाइन ट्रेनिंग कर रहा था। हाँ, तो वही मतलब it was a boon in disguise, blessing in disguise. तो वहाँ से फिर ऑनलाइन में चालू किया। फर्स्ट 1 week 10 days तो मतलब वो डिप्रेशन में चला गया था, क्या करो, इतना पैसा, घर का ये वो बहुत कुछ है, you know, when the family is there looking after you, उनका सब कुछ है। तो फिर वहाँ से उठ के फिर जब ऑनलाइन में चालू किया, जूम में पहले ऐसे ही ऑनलाइन क्लासेस लेना चालू किया, तो लाइक इट वाज सरप्राइजिंग एंड ओवरवेलमिंग। एक दिन में 400-500 पीपल वुड यूज्ड टू जॉइन माय सेशन सिंगल डे, क्योंकि वहाँ पर उस टाइम पे एकदम स्टार्टिंग में मैं आई एम ऑनलाइन कोच, क्योंकि जूम वगैरह मेरे को मालूम था पहले। तो when I started this online training इंडिया में, मे बी जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ नेक्स्ट दिन से ही ऑलमोस्ट ऑनलाइन में मेरा चालू हो गया था। तो
पीपल कहाँ से ज्वाइन होता था, आई डोंट इवन नो देम फर्स्ट 3 days 4 days के बाद। मतलब मेरा 500 रुपीज उस टाइम पे जूम का थोड़ा फ्री भी था, सस्ता था, 500 कैपेसिटी वाला लेके रखा था। एंड मॉर्निंग 6 o'clock चालू करूंगा, 5:55 से द रूम विल बी फुल, राइट, ऐसा था। So ये customers कहाँ से मिल रहे थे आपको? जिम बंद, जैसे जिम बंद हो गए पैंडेमिक के टाइम पे, राइट? And you were struggling with that. So how did you get those 500 customers? ऑनलाइन कैसे आपने शुरू किया? जिम में जैसे बंद हुआ तो उन सबको बोला अभी उनका भी करना कुछ नहीं है, वो भी घर में ही बैठे हुए हैं, लॉकडाउन हो गया जैसे इंडिया में पूरा। पहले तो नहीं था, वी डिडंट नो लॉकडाउन होगा नहीं होगा, तो कोची में खाली जिम एंड पार्लर वगैरह केरला में बंद करके रखा था। तो फॉर सम कस्टमर्स आई पेड बैक द मनी एंड ऑल दोस थिंग्स, तो ऐसे भी हुआ। फिर आई कॉल्ड अप ऑल द कस्टमर्स, मैसेज एवरीवन टू कम एंड जॉइन द ऑनलाइन मॉर्निंग सेशन, आप लोग भी घर में ही आए। व्हेन द लॉकडाउन फाइनली, ग्रेट इंडिया लॉकडाउन फाइनली हैपेंड, वो लोग भी घर में है, कुछ करना नहीं है, तो मॉर्निंग सब ज्वाइन। तो उनका फिर रेफरेंस ऐसे 10 लोगों का 100 हो गया, 100 का 500 हो गया, तो पता नहीं चला, ठीक है, विद इन वीक्स। तो बट एट दैट टाइम इट वाज फ्री फॉर फर्स्ट 2-3 months, इट वाज फ्री, कंप्लीटली फ्री। एंड देन हाउ डिड इट गो? आपको फिर 2-3 months जब फ्री आपने करा, लॉकडाउन जब वो खत्म हुआ तो उसके बाद, क्योंकि लॉकडाउन खत्म हुआ बाकी काम चालू हुआ, जिम वाज नॉट ओपन, तो पीपल मतलब आई वाज कंटिन्यूइंग। तो बहुत सारे लोग फिर मेरे को ऑफर करने लगे कि विल पे यू मनी, व्हाई आर यू डूइंग इट ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर अस। तो कोई 1000 रुपीज, कोई 2000 रुपीज ऐसे। इट वाज नॉट लाइक प्रोफेशनल थिंग, मैं चार्ज करूंगा उनको, इनवॉइस दूंगा, ऐसे कुछ नहीं था। तो वहां से फिर कुछ क्लाइंट्स, तो केरला में बहुत सारा क्लाइंट्स यूएसए, कनाडा, उस साइड से भी ज्वाइन किया। टाइम डिफरेंस एक्चुअली 12 hours 13 hours होने के लिए, तो मॉर्निंग में 6 o'clock विल बी इवनिंग 6 o'clock 6:30 7 o'clock फॉर देम, इट वाज इजी फॉर देम, ऐसे करके तो वैसे भी हुआ। Got it. So this is very interesting that you know कि आपने पहले तो जिम में आप ट्रेनिंग कर रहे थे, जब आपको you know लॉकडाउन जब हुआ, you thought कि यार अब थोड़ा देखना पड़ेगा ऑनलाइन, नेक्स्ट डे ओनली यू started ऑनलाइन and फ्री आप दे रहे थे लोगों को 2-3 तक, राइट? 2 महीना पूरा फ्री, ऑलमोस्ट 2-3 months पूरा फ्री दिया, जब तक May 31st तक, जब तक ओपन नहीं हुआ लॉकडाउन इंडिया का, तो पूरा फ्री दिया था। So how did you why did you think यार ये फ्री करते हैं? Because आपका रेवेन्यू तो हिट हो गया होगा, राइट? इनकम पूरी बंद हो गई होगी 2-2.5 महीने, तो आपने फिर भी कैसे सोचा कि यार फ्री करते हैं इसको एंड you know let's persist that? How did it financially make sense? इसमें फ्री करते हैं इन द सेंस आई वाज नॉट इन ए पोजीशन टू आस्क फ्रॉम एनीबॉडी, बिकॉज सभी का ही तो बंद हो गया है इनकम सोर्स। मोस्ट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट जॉब में कितने लोग हैं जो ऑफिस भी नहीं जाना पड़ रहा है और इनकम भी आ रहा है, ऐसे कितने लोग हैं? मैक्सिमम पीपल, एवरीबॉडी इज सेइंग दैट। तो इट वाज काइंड ऑफ आउट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन बेसिस आल्सो, कि हाँ मैं भी कुछ कर रहा हूँ लॉकडाउन में बाकी के साथ, आई एम टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ, वो भी एक पार्ट है। एंड द सेकेंड थिंग इज इट वाज आल्सो ए मेंटल सपोर्ट फॉर मी, इट वाज ए थेरेपी फॉर मी, फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं अगर वो भी नहीं करता तो मे बी आई कुड हैव एंड अप इन हॉस्पिटल फॉर मेंटल प्रॉब्लम एंड ठीक है, बिकॉज यू नो वर्कआउट इज ए वेरी गुड लाइक मेंटल बूस्टिंग, है ना? डिप्रेशन से निकालने के लिए वर्कआउट इज ए वेरी गुड थिंग। तो अकेले करने से अच्छा तो अपने आप को खींचो, तो वहाँ पे जब आई नो कि इफ आई डोंट जॉइन समबडी विल बी वेटिंग फॉर मी, तो वहाँ पे एक बूस्ट मिलता है ना, हाँ चलो करते हैं। बिल्कुल, another thing. That's amazing, Abhishek. So you were doing this live session, उसके बाद आप वापस जब जिम खुल गए, you again went back to the gym? No, उस टाइम पे जिम खोलने के बाद द प्रॉपर्टी ओनर आस्क्ड मी 7 months ऑफ जिम खोला ऑलमोस्ट, मतलब लॉकडाउन खोलने के बाद भी 4-5 months बाद हम लोग जिम एसोसिएशंस वगैरह, जिम ओनर्स एंड ऐसे एसोसिएशंस वगैरह मिलके फिर हम लोग फिर गवर्नमेंट के पास में म्यूनिसिपैलिटी वगैरह में, क्योंकि वो खोल नहीं रहा था, जिम वाज नॉट ओपनिंग एट द टाइम, तो बंद ही था। तो उनके पास एफिडेविट जमा किया कि ऐसा है, विल टेक केयर ऑफ द हाइजीन, विल टेक केयर ऑफ द सैनिटाइजेशन एंड ऑल दोस थिंग्स। तो फिर द प्रॉपर्टी ओनर आस्क्ड फ्रॉम मी ऑलमोस्ट 7 months रेंट फ्रॉम दैट टाइम, व्हिच वाज आई वाज नॉट इन ए पोजीशन। तो मैं बोला ठीक है, इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं इसमें ऑलरेडी कर रहा हूँ, ऑलरेडी मेरे पास कस्टमर बेस है, ऑलरेडी दे आर डूइंग, मैं आई डिडंट टेक ए लाइक कोई 7 months इन्वेस्टमेंट एंड मंथली यहाँ पे जो मिल रहा है दोनों को हिसाब किताब किया,
फिर कैलकुलेशंस वगैरह किया, फिर स्टडी रिपोर्ट वगैरह देखा ऑनलाइन कैसे ग्रोथ हो रहा है, और ऑब्वियसली ऑनलाइन मेरा जिम में 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के सर्कल से लोग आएगा करने के लिए, बट ऑनलाइन में आई हैव द होल वर्ल्ड इन फ्रंट ऑफ मी. By that time I was training people from Qatar, Dubai, people from Maldives. I already started within this 6-7 months of span. क्योंकि मेरा Facebook अकाउंट वगैरह काफी अच्छे से रीच मिल गया था मेरे को. वो कैसे मिला था अभिषेक? Were you doing some ads? No, उस टाइम पे पूरा ऑर्गेनिक, मैं 2021 तक पूरा ऑर्गेनिक रीच था मेरा, और वो मतलब किसी ने रिपोर्ट कर दिया होगा, कुछ कर दिया होगा. आई ऑलमोस्ट लॉस्ट. फेसबुक एक पेज था, उसमें 55,000 मेरा फॉलोअर्स हो गया था ये विजिट. तो बट वो अचानक से मेटा है स्टैंड इट डाउन. उसको पता नहीं, कुछ अलग से ही कुछ क्लेम कर दिया था, कुछ कम्युनिटी रिपोर्ट अगेंस्ट हो गया था, कुछ हुआ था. तो वो वाला पेज ही मेरा, आई लॉस्ट द पेज, कुछ मिला नहीं उस पेज से. तो आई हैड टू स्टार्ट इट ऑल फ्रॉम स्क्रैच अगेन, फेसबुक वाला. तो वो उस टाइम पे मैं बताऊं, फ्रैंकली बताऊं, मतलब ऑर्गेनिकली आई वाज अर्निंग अराउंड 1.8 to 2 lakh rupees per month, और विदाउट एनी स्पेंडिंग. ठीक है. तो वहां से फिर 2022 जब फिर धीरे धीरे लॉकडाउन वगैरह अच्छे से खुल गया, इंडिया केम बैक टू नॉर्मल, फिर वो ऑनलाइन से धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि लोग खाली एक्सरसाइज करने के लिए आएगा नहीं. Okay. They want to go out, mingle with people and all those things. तो जिनका प्रॉब्लम हो रहा था वो ऑनलाइन में कर रहा था, जिनका प्रॉब्लम नहीं हो रहा, मतलब जिनका बाहर जाने का प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, तो they started choosing the gym thing. Although they were very good friends of me, but they stopped coming to my sessions and all those things. So when did you feel? Go ahead. वही by end of 2022 my revenue again got back to like 30,000 40,000 per month only, from somewhere like 2 lakhs से इतना नीचे आ गया. तो वहाँ पे फिर मैं मेटा एड करना, मतलब एड चलाने का सोचा 2021 लास्ट से. तो आपको कुछ आइडिया था पहले मेटा एड्स के बारे में, या फिर आपने खुद ही स्टडी करा यूट्यूब से सीख के, थोड़ा बहुत इधर से सीख के? व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस बैक देन? वही आइडिया तो बिल्कुल नहीं था. फेसबुक, हम लोग सच बताऊं, लॉकडाउन से पहले फेसबुक होना, इन्फ्लुएंसर होना, ये होना वो होना, उतना कल्चर नहीं था. हाँ, तो फेसबुक में उतना, क्योंकि ऑनलाइन प्रोग्राम का ही कल्चर नहीं था कुछ, है ना. तो जब फेसबुक इंस्टाग्राम जब होना चालू हुआ, तो नीचे ऑप्शन आता ना, बूस्ट योर पोस्ट. कभी कभी ऑप्शन आता है, यू कैन रीच दिस मेनी पीपल विद दिस पोस्ट. तो ऐसे ही बूस्ट करता था. फिर किसी कोच ने बोला कि मैं ही बूस्ट करने से तो नहीं होगा, जैसे मतलब ऐसे ही आप लोगों का जैसे वीडियो आता है, हमारा भी जैसे वीडियो आता है, वैसे ही किसी का वीडियो आया कि बूस्ट करने से वो रैंडम होता है, आप ऐसे करो, ये करने से. तो उसमें देख के करके फिर उसका यूट्यूब में जाके कुछ वीडियो सर्च किया कैसे करना है. फिर मेटा का जो का जो वेबसाइट है, उसका जो वीडियोज वगैरह है, उसमें देख के थोड़ा बहुत करके किया. तो फिर टारगेटिंग कैसे करना है 2020 आप लोग जब चालू किया, TGOX जब चालू किया 2023 में आई गेस ना. व्हेन डिड यू गाइस स्टार्टेड हैविंग योर इंडिया में? हम लोग 2022 के एंड तक हम आ गए थे, 2023 स्टार्टिंग के आसपास इंडिया में आए थे. वैसे तो कंपनी 2020 में शुरू कर ली थी हमने, बट दैट वाज ओनली इंटरनेशनल क्लाइंट्स दैट टाइम. तो वही वो स्टार्टिंग में जब मेटा आप लोगों का ऐप ऑलमोस्ट 1 महीने के लिए फ्री था, और फिर आपका भी सेशंस में ज्वाइन किया था उस टाइम पे, बट आई कुड नॉट एनरोल माई सेल्फ बिकॉज ऑब्वियसली लैक ऑफ मनी. मेरे पास पैसा बिल्कुल नहीं था, मतलब हैंड टू माउथ कंडीशन था मेरा, फ्रैंक बता रहा हूँ. क्योंकि मेरा 2 लड़का है, 1 इज इन 11th स्टैंडर्ड नाउ एंड 1 इज इन 10th स्टैंडर्ड. उन लोग को पढ़ाई, मैं जहाँ पे रहता हूँ, घर का रेंट, बहुत सारा है, यू कैन अंडरस्टैंड. तो सेविंग्स वगैरह तो पहले धीरे धीरे करके उड़ ही गया था. वो जब लॉकडाउन स्टार्टिंग में शुरू हुआ, घर में पेरेंट्स को देखना है, वाइफ का पेरेंट्स है, तो ऐसे बहुत कुछ है. दैट टाइम आई डिडंट, बट आई यूज्ड टू फॉलो यू गाइज, एंड वहाँ से आप लोगों का कुछ टिप्स मिला था मेरे को, जो टारगेटिंग कैसे करना है, पर्टिकुलर NRI टारगेटिंग कैसे करना है. फर्स्ट अभी मेटा पॉलिसी 2024 में टारगेटिंग वाला चेंज होने से पहले जो था, वो मेरे को काफी हेल्प किया था. उसमें से मैं अच्छे से करके ऑलमोस्ट अराउंड मैं 2023 में आई कुड बूस्ट माई प्रोग्राम. तो लाइक वंस अगेन आई रोज टू लाइक 60-70,000 मेरे को उधर से आ रहा था. फिर रेफरेंस से भी मिल रहा था बहुत सारे, जिनको कराया. एक मेरा लाइक
अभी भी ये गॉड गिफ्टेड बोलूंगा या ऊपर वाले का ब्लेसिंग बोलूंगा, जिनके साथ होता है अच्छे से दोस्ती हो जाती है। जी ठीक है, ऑलमोस्ट 90% दे स्टे विथ मी। तो अभी 2020 से बहुत सारे लोग हैं। मैं कम्युनिटी रन करता हूँ, ऐसा नहीं कि जस्ट हाँ कराया छोड़ दिया, ऑल आर टुगेदर एक साथ आए। एट प्रेजेंट मेरा ऑलमोस्ट 750-800 कम्युनिटी मेंबर्स है। व्हाट्सएप में कम्युनिटी है। व्हाट्सएप में कम्युनिटी होने के चलते द कम्युनिटी इज ओपन, एवरीबडी कैन टॉक विद ईच अदर, दे कैन हैव देयर नंबर एंड ऑल दोस थिंग्स। एक ट्रांसपेरेंसी है वहाँ पे। तो उसके चलते तो काफी सारे लोग 2021 में छोड़ दिया था किसी वजह से, तो बाद में फिर चालू किया। बीइंग इन द कम्युनिटी, व्हेन द राइट टाइम स्ट्रक्स आई वाज देयर इन फ्रंट ऑफ देम, ऐसे भी हो रहा था। तो ऐसे करके फिर 2024 का मिडिल तक जाते मेरा फिर मतलब वही फिर मेटा पॉलिसी फिर से थोड़ा चेंज हो गया। मेटा एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी फिर से चेंज हो गया, टारगेटिंग का चेंज हो गया। आई वाज लाइक मेरे को कुछ क्लू नहीं मिल रहा था क्या है करके। तो उस टाइम पे फिर से ये टीजीओ, जब व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द टीचर अपीयर, टीजीओ का फिर से ऐड जाने लग गया। तो बाकी सब जितना है मार्केट में कि हाँ मे बी वो लोग भी अच्छे से सिखा रहा है, ये कर रहा है, बट व्हाट आई नीडेड एंड व्हाट आई गेट फ्रॉम यू गाइज, I felt at that time, till now I feel it is very reasonable. The pricing is very reasonable. कि आप लोग जो सिखा रहे हो उस टाइम पे मेरे को आप लोग ओवर प्रॉमिस कर रहे हो या अंडर प्रॉमिस कर रहे हो मुझे पता नहीं था, बट आई न्यू व्हाट आई कैन लर्न फ्रॉम यू गाइस। तो वो था। और जो प्राइसिंग था, कैन आई रिवील द प्राइसिंग, मतलब बोल सकता हूँ वो प्राइसिंग बात कर सकता नहीं? That to keep increasing, but you can be like जो उस वक्त था सबसे पहली बार जब आपने प्राइसिंग आपको बोला था, उससे सेकंड टाइम में तो बहुत इंक्रीज था, और अब वहां से अभी जो करेगा तो अलग होगा। तो यू कैन टेल मी अबाउट एवरी ईयर। तो नहीं, सबसे पहले तो कुछ लाइक ऑन द कॉल जो वेबिनार ले रहे थे उसमें 25,000 बोल के फिर यू ऑफर्ड मी 15,000, बट मेरे पास रियली में पैसा नहीं था उस टाइम पे देने के लिए। मतलब 10,000 रुपीज अलग से निकलने के लिए भी पैसा नहीं था। ऐसे टाइप का है। तो बाद में लाइक ये 34,500 का जो एलीट पैकेज दिया है 1 साल के लिए, उसमें आप लोग सब कुछ दिखाओगे, वो तो उसमें इट वाज आई पे, क्योंकि मार्केट में बाकी सब इट वाज दे वर स्पीकिंग इन लैक्स एंड ऑल दोस थिंग्स कि ये कराएंगे 1 लाख रुपए हमारे को ये 1 साल के लिए कराएंगे। तो नहीं, मेरे को एक भरोसा अपने ऊपर था कि आई एम ए वेरी गुड स्टूडेंट। मैं सबसे ये मेरा मतलब SWOT एनालिसिस जब करते हैं, स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी ये एनालिसिस जब करते हैं, तो मेरे को ये एक चीज पता है अपने बारे में, आई एम ए वेरी गुड स्टूडेंट। तो बीइंग ए वेरी गुड स्टूडेंट वो वाला है, तो मेरे को अगर सामने वाला कोई सिखाएगा मैं बहुत जल्दी पिकअप कर पाऊंगा, ये कॉन्फिडेंस मेरे पास में था। ठीक है, तो मेरे को ये नहीं लगा कि कभी मेरे को 1 साल तक प्रोग्राम का सपोर्ट चाहिए। मे भी स्टार्टिंग का मेरे को मटेरियल दे दो और उसी से यहाँ 1 साल तक का सपोर्ट है तो ऑब्वियसली अच्छा है। तो कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, आई कैन लाइक हमेशा द पॉलिसीज आर चेंजिंग, द थिंग्स आर चेंजिंग। आज के डेट में मतलब लास्ट ईयर जो था और अभी जो है बहुत चेंज है। अभी भी मेटा एड्स में भी बहुत सारा चेंज हो गया ऑलरेडी। अब पहले what were the 2-3 things that you felt कि यार you were struggling with before and you felt that okay, this was able to exactly help you with, like for anybody else who's like watching this, they might not know कि यार मेटा पॉलिसीज के लिए मैं ज्वाइन करूं या what am I really getting here? So what was you for you in that case? टारगेटिंग कस्टमर्स नहीं मिल रहा था सबसे पहले तो, है ना? यहाँ पे टारगेटेड कस्टमर्स मिल रहा था, मतलब okay. ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस हुआ ये ज्वाइन करने के बाद। एंड सबसे बड़ा डिफरेंस जो हुआ थी, एक चीज मैं मानता हूँ स्टार्टिंग से, यू कांट चेंज व्हाट यू कांट मेजर। ठीक है, तो मेरा जो एड चलाता था उसका मेरे को मेजरमेंट नहीं मिल रहा था। हाउ द एड इज परफॉर्मिंग, हाउ मच क्लिक आई एम गेटिंग, हाउ मच मनी आई एम स्पेंडिंग ऑन दिस मच बेसिस, उसमें से कितने लोग देख रहा है, कितना लोग मेरे को उसमें डीएम कर रहा है, उस डीएम से कितना लोग मेरे पास में कॉल बुक कर रहा है, उस कॉल बुक से कितना लोग मेरे पास कन्वर्ट हो रहा है। हाँ हो रहा है, चलो कभी कभी किसी महीने में बहुत अच्छा हो गया तो आई एम वेरी हैप्पी, किसी महीने में नहीं हुआ तो आई एम सैड एंड आई एम वंडरिंग कि क्या हुआ। यहाँ पे एक सिस्टेमिक फॉर्मूला जो मेरे को मिला एंड लाइक एक तो क्या बोलते हैं मेटा सूट्स जो है, मेटा एसेट्स जो है, वो तो मेरे पास था नहीं। आई वाज जस्ट नॉर्मल एक पेज था, उस पेज में जस्ट रन कर रहा था। मेटा एसेट बना के उसमें से कैसे कैसे क्या क्या करना है, तो वो तो मेरे पास नहीं था।
that is one thing I got it very properly. And वो मेटा एसेट होना चाहिए. मेटा एसेट में से अगर रन करेंगे तो लाइक ऑब्वियसली आपके पास अगर बिजनेस है और बिजनेस का ना अप है ना डाउन, ना अप पता है ना डाउन पता है, मिडिल का खाली कुछ कुछ मिल रहा है, तो कहाँ पे शुरू कहाँ पे अंत अगर पता नहीं है तो you can't measure, you can't scale. बहुत सारे में प्रॉब्लम होगा. हाँ, जितना दिन चल रहा है, जब नहीं चल रहा है लक के ऊपर. हिट हो गया 10 पत्थर मार दिया, एक चिड़िया को लग गई तो लग गई, नहीं तो चलो क्या. अभी एम करके एक को लगाना डिफरेंट थिंग है ना. Those things I learned properly from TGOA. So basically targeted customers कैसे लाने हैं, उनको कैसे आज के थ्रू टारगेट करना है, and then sustainably कैसे इसको ग्रो करना है और measure करना is what you felt here that was the gap before and you wanted that particular learning in that, right? So उसका result क्या है? Like काफी लोग अभी जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, taking some inspiration from you, वो सोच रहे हैं कि यार but पहले वो अभी 60-70 पे पहुंच गए थे, राइट? आप जब खुद अपने आप ट्राई कर रहे थे मेटा एड्स, कभी अच्छा जा रहा था, कभी वैसे जा रहा था, राइट? सो व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ यू बीइंग एबल टू मेजर एंड आपको टारगेटेड क्लाइंट्स मिले? सो व्हाट इज द एड स्पेंड दैट यू पुट अप्रोक्सीमेटली एंड व्हाट इज द रिटर्न विद इट? टारगेटेड कस्टमर ये वो तो हो रहा था. देखो अभी when you have touched a height like 1.8, 1.9 and 2 lakhs per month, वहाँ से 40, 50, 60,000 में आपका रेवेन्यू वापस हिट करना, it is kind of frustrating. Anybody can feel that frustration. ठीक है. अभी क्यों नहीं हो रहा था? Obviously कहीं प्रॉब्लम हो रहा था जहाँ पे मेरे को पता नहीं चल रहा था. When I joined this TGOX तो मेरे को पता चला ओके इस वजह से नहीं हो रहा था, तो इस वजह से अभी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है. तो वो सारे टेक्निकल डिटेल्स मैं एक्चुअली एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बट ऑब्वियसली देयर इज डिफरेंस इन नॉर्मल रनिंग द एड्स एंड रनिंग द एड्स थ्रू मेटा एसेट्स एंड ऑल. बिजनेस प्रोफाइल से रनिंग करने में काफी डिफरेंस है. मेरे पास पहले बिजनेस प्रोफाइल था, बट वही है ना, आई डिडंट नो हाउ टू यूज इट. मतलब मैं जब क्रिएट किया था इस स्टार्टिंग में, उस टाइम पे बिजनेस प्रोफाइल भी एज ए बिजनेस प्रोफाइल ही क्रिएट हुआ था. बट एक कहावत है, हम लोग मैं जब नेवी में था, एक मजाक में बोलता था कि इसके पास बंदूक भी है, इसके पास बुलेट भी है, लेकिन बुलेट को हाथ से फेंक के मार रहा है. तो ऐसे टाइप था मेरा. Got it. When I started with you program, जैसे पहले लॉन्च फेज से पहले जो बिगिनर्स फेज है उसमें, तो वो सब तो मेरा ऑलरेडी रेडी था, क्योंकि मेरा फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज दोनों ही ऑप्टिमाइज था, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ. आई वाज गेटिंग गुड रीच, वीडियो क्वालिटी ये सब में भी कोई प्रॉब्लम नहीं था. मैं पहले से वीडियो एड ही करता था, मेरे को मतलब स्टैटिक एड कभी किया नहीं. तो जब मेटा एसेट्स के थ्रू करने लगा, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू मैं बताऊं तो मैं अगस्त लास्ट में ज्वाइन किया, सितंबर में मैं उससे पहले 50,000 हो गया, तो आई वाज हैप्पी कि हाँ चलो 50,000 एटलीस्ट हो गया मंथली रेवेन्यू. बट इट रोज शार्पली टू 85,000, 90,000 बाय द एंड ऑफ अक्टूबर. मतलब सितंबर खत्म हुआ, सितंबर में इसके थ्रू, इस प्रोग्राम के थ्रू सितंबर 28 के बाद आई हिट द फर्स्ट कस्टमर. उसमें वही, बट वही है, पैकेजिंग को खाली एक्सरसाइज से निकाल के एज ए कंप्लीट पैकेज मैं आपको गाइड भी करूंगा, मैं आपको वेट लॉस की डाइट भी दूंगा. हमें सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट पहले से ही था, डाइट वगैरह बनाना आता है, लेकिन उसको कैसे पैकेज बना के 3 मंथ का प्रोग्राम देना है, 100 डेज का प्रोग्राम देना है या 6 मंथ का प्रोग्राम देना है, वो मेरे को उतना आइडिया नहीं था. तो वो सब भी थोड़ा सा इधर से आइडिया मिला. तो न्यूट्रिशनिस्ट में मेरा मतलब न्यूट्रिशन में पीजी भी किया हुआ है, तो डीप नॉलेज है ऑलरेडी. तो वो सारे नॉलेज है, लेकिन उसको कैसे सेल करूं वो ठीक से नहीं हो रहा था. सही है. वो जब होने लगा तो इट शार्पली रोज टू लाइक 50,000 वाला 80, 85,000, 90,000, अक्टूबर एंड होते 1 लाख क्रॉस कर गया. लास्ट ईयर नवंबर में मैं मतलब ऑब्वियसली, और दिवाली के बाद नवंबर में, ये मैं पहले से ही देख रहा हूँ, नवंबर में सबसे ज्यादा जनरली सेल होता है बिकॉज न्यू ईयर इज कमिंग, और फिर जनवरी में सेल होता है. तो नवंबर में ऑलमोस्ट अराउंड 1,39,000 का मेरा हिट हुआ था, रेवेन्यू हिट हुआ था. वो सबसे ज्यादा था टिल लास्ट जून. ठीक है. फिर उसके बाद में एवरेज 1,20,000, 1,30,000 मेरा आराम से हो जाता है. मतलब कभी कुछ अलग से मेरे को बहुत सारा कॉल लेना पड़ा, एंड आई एम रियली, मैं ज्यादा कुछ उतना टेंशन लेके, कभी कभी टेंशन होता है, लेकिन हाँ ठीक है, इधर उधर करके मैं मतलब बहुत ज्यादा काम करना है, बहुत ज्यादा इसके ऊपर में प्रेशर डालना है, बहुत ज्यादा एड बजट बढ़ा के. आई हैव नेवर क्रॉस माई एड बजट मोर देन 250 रुपीज पर डे. ठीक है.
और ऐसे भी बहुत सारे दिन गया कि मेरे को 10 से 12 ज्यादा डीएम आ गया, मैं ज्यादा कॉल बुक नहीं कर पाया, तो मैं एट बजे अगेन ब्रिंग इट डाउन टू 100 एंड 150 एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, मतलब साइकी होकर के मेरे को पूरा दिन ही कॉल लेना है, पूरा दिन ही डीएम में घुसे रहना है, ऐसा मेरे को नहीं चाहिए था कभी भी। क्योंकि मेरा मेन प्रोफेशन है ट्रेनिंग कराना, मेरा मेन प्रोफेशन है लोगों को जो एनरोल हुआ उन लोग को अच्छे से सर्विस देना, है ना। तो वो वाला पार्ट में हम अभी भी, आज भी मेरा मतलब सैटरडे संडे मेरा पूरा दिन उसी में प्रोग्रेस रिपोर्ट चेकिंग और कंसल्टेशन का ही दिन रहता है। ठीक है, एंड तो वहाँ से शार्पली लास्ट जून में, मई में फिर हिट किया था, इट केम डाउन टू 110 अगेन, बिकॉज कोई वेकेशन, स्कूल वेकेशन, समर वेकेशन, सभी लोग ज्वाइन, तो मतलब कॉल्स तो बहुत हुआ एंड एवरीबॉडी वाज सेइंग ओके हम लोग वेकेशन में जा रहे हैं, जून 1 से स्टार्ट करेंगे, वेकेशन में जा रहे हैं, जून 1 से स्टार्ट करेंगे। तो somehow I kept them with my connection। मैं जब बता रहा था उन लोग ये वाला, अगर नया कोई कर रहा है तो मैं उन लोग को भी, नया जो ये पॉडकास्ट देखेगा उन लोग को भी है, आपको समवेयर ट्रस्ट बिल्डअप करना है क्लाइंट्स के साथ और एक कम्युनिटी रन करना है। विदाउट रनिंग ए कम्युनिटी यू वोंट बी एबल टू सक्सीड इन ए लॉन्ग टर्म। रिपीट कस्टमर्स आना मुश्किल हो जाएगा। मेरे पास ऐसे भी रिपीट कस्टमर्स आता है जो 2 साल 3 साल से मेरे को देख रहा है, जस्ट वॉचिंग ओके, बाद में जब ज्वाइन हुआ ऐसे। ठीक है, आज भी मेरे को एक डीएम मिला, आज भी मेरे को एक ऐसी डीएम मिला मॉर्निंग में कि मेरे को ज्वाइन करना है कैसे। अमेजिंग। तो अभिषेक, if somebody is watching this, right, तो आपको जो जर्नी of revenue जो ग्राफ है, right, how did it go from August last year, let's say August of this year, right? तो पूरा वो ग्राफ, how would you try to help anybody understand very clearly? 120% से ज्यादा, 120%, 130% से ज्यादा रेवेन्यू है अभी लास्ट ईयर अगस्त से इस साल अगस्त का। मेरा आज 23, मेरा 20th तक मेरे पास कैलकुलेशन है ऑलरेडी, लास्ट मंथ का टोटल रेवेन्यू से ज्यादा हो गया ऑलरेडी। And the last August you were about 50 when you just joined, average 50-60 now. Then October में it went to almost 80 like you said, right? अक्टूबर में नहीं, सितंबर में 80 में पहुंच गया था। सितंबर में 1 महीने में ही हो गए थे। And अक्टूबर में you reached अक्टूबर में 1 लाख, अक्टूबर में 1 लाख क्रॉस किया था, नवंबर में 1,39,000, 1,40,000 बोल सकते हैं, दिसंबर में 120, दिसंबर से ऑलमोस्ट मई जून तक 120 एवरेज, मतलब 25 होता है कभी, 15 होता है कभी, ऐसे। जून में 150 क्रॉस किया, जुलाई में 180 क्रॉस किया, इस महीने ऑलरेडी 180 क्रॉस कर गया 28th को। Brilliant. So now you're again back to the same numbers that you were once sitting in. You are now killing it. But इसमें मेरा एक और क्या है, अभी मेरे पास एज ए ट्रेनर मेरे पास 4 लोग और काम कर रहे हैं, 4 लेडीज और काम कर रहे हैं एज ए ट्रेनर। मतलब मॉर्निंग एंड इवनिंग मेरा ऑनलाइन में ग्रुप क्लासेस चलता है। तो मेरे पास में वो लोग पहले ऐसे स्टूडेंट थे, क्लाइंट नहीं था, एज ए स्टूडेंट था वो कभी बहुत सारा स्टोरीज है। तो after that they became trainer, they choose to become trainers themselves and helping people, so paid service. So I'll managing ask you the online thing. So I'll now ask few rapid fire type questions, okay, and you can give a very short and 2-3 line sentence answer for that. Number one is, lots of the people think that online is saturated, अब लोगों को online नहीं करना है, लोगों को जिम में जाके ट्रेनिंग करनी है और online से results भी नहीं आते हैं। So what is your take on that in very short? कल ही मैं देख रहा था, ऑनलाइन मार्केट इज अराउंड, ये एक्चुअली मैं शॉर्ट में दे नहीं सकता ये वाला, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ, इंडिया में ही खाली 35% पॉपुलेशन इज इन द ओबेसिटी कैटेगरी, ओवरवेट कैटेगरी में भी नहीं, ओबेसिटी कैटेगरी में 35% पॉपुलेशन है। ठीक है, उसमें से हाउसवाइफ्स को जिम जाने का एक्सेस बहुत कम है। बिजी प्रोफेशनल्स को जो आईटी में जॉब करते हैं, मॉर्निंग बहुत लॉन्ग आवर जॉब है, ऑनलाइन में करने का मतलब जिम जाने का बहुत कम है। तो मेनी पीपल हाँ, जिम ऑब्वियसली जिम इज गुड, जिम जाओ, जिम जाके अच्छे से एक्सरसाइज वगैरह करो, बट अगर नहीं मिल रहा है तो ऑनलाइन इज ए वेरी वाइड ऑप्शन एंड इट्स ग्रोइंग। आई कैन सी इट्स ग्रोइंग। मेरे पास जितने भी लोग ज्वाइन करना है, स्पेशली लेडीज एंड सम
जेंट्स ऑल्सो दे सेड दे कुड नॉट इवन थॉट ऑफ गोइंग टू जिम बिकॉज कि घर में बहुत सारा प्रॉब्लम है, बच्चे को छोड़ के कहाँ जाए, 1 घंटा जाने के लिए 45 मिनट 30 मिनट 45 मिनट टाइम लगेगा, वहां पे जाके करके 1 घंटा करके फिर आने जाने में ऑलमोस्ट 2-3 आवर्स हो जाएगा सब मिला के, जिम जाके करके आएंगे तो एंड टायर 2 टायर 3 सिटीज में इवन इंटरनेट कनेक्शन इज गुड, प्रॉपर अच्छा जिम नहीं है लेडीज के लिए, थोड़ा सा कोई तो फिर जिम में जाके उतना करने के लिए कंफर्टेबल नहीं होता है बिकॉज ऑफ द लाइक इंटिमिडेशन होगा कि हाँ बाकी सब बहुत ही फिट एंड हेल्दी है, मैं मोटी हूँ, मेरे को देख के वो लोग मजाक उड़ाएगा, होता भी है किसी केस में वो सब है। तो घर में जस्ट 40 मिनट्स 45 मिनट्स टाइम बस ऑन करो, लग जाओ, एक्सरसाइज भी हो गया, कंटिन्यूअस गाइडेंस में रहो, खुद से भी एक्सरसाइज कर सकते हो, ऑनलाइन एक डाइटिशियन का या कोच का एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा, क्या क्या ये खाना है, ये करना है। तो ऑनलाइन में ये आई डोंट थिंक इट विल गोइंग टू डाई सुन क्या होगा ही नहीं मेरे ख्याल से। It's growing since pandemic and it will continue to grow. It will continue to grow and there is actually मैं बोलूँगा saturated नहीं, there are need for more online coaches because client बड़ा है। 30% of Indian population are obese means you can understand 50 crore Indian population are in the obese category, ठीक है। 50 crore Indian population obese category में मैं सपोज सोच रहा हूँ कि उसका 50% सोच रहा है कि मेरे को ठीक होना है, 50 crore से 50% मतलब 20% 25 करोड़ लोग सोच रहा है कि मेरे को ठीक होना है। 25 करोड़ लोगों में से मे बी 10 to 15 करोड़ लोगों को होगा कि मेरे को जिम का एक्सरसाइज जिम जाके करूंगा, ठीक है। उसके बाद भी 15 करोड़ लोग 10 से 15 करोड़ लोग बचा हुआ है जो कहीं नहीं जा पा रहा है बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम, जिम में जा नहीं पा रहा है। तो 15 करोड़ लोगों के पास आजकल इंडिया में अभी 1 लाख कोचेस भी नहीं होगा मेरे ख्याल से सब मिला के, या 2 लाख 1 से 2 लाख कोचेस 1 से 2 लाख कोचेस है, बड़ी मुश्किल से 1 लाख बनेगा। 10 दिन का कोच नहीं है, प्रॉपर कोच ऐसा नहीं है, बट वही मतलब प्रॉपर सर्टिफाइड एक्सपीरियंस कोच जो रिजल्ट दे सके वो 1 लाख भी नहीं होगा, है ना। बिल्कुल। तो 1 लाख कोचेस के लिए 10 करोड़ लोग वेट कर रहे हैं, सोचो डिफरेंस कितना है। बिल्कुल। थिंक ऑफ द रेवेन्यू यू कैन मेक मंथली, ठीक है। ब्रिलियंट। अभी तो मैं तो जस्ट स्टार्टेड हिटिंग द रॉक बॉटम, अभी तो ऊपर तो बहुत जाना है एक्चुअली ठीक से करूंगा तो। Brilliant stuff, Abhishek, and that's a very interesting fact that you shared with us. And what would you say to people, right, who are like continuously trying their hands on different things like boosting or trying the meta ads themselves, playing around with things and all that, but are very hesitant to invest because उनको समझ में नहीं आ रहा कि यार इन्वेस्ट करने से क्या होगा, या दे फील दैट कि मैं खुद ही कर लूंगा एंड ऑल दैट स्टफ, राइट? सो व्हाट इज योर एडवाइस टू दोस पीपल एंड दोस ऑनलाइन कोचेस? एक चीज मैं बोलूंगा, टीजीओ विल टीच यू प्रॉपर बेसिक एकदम सॉलिड करके देगा। आप लोग अगर सीखना चाहते हो ठीक से, टीजीओ के पास सीखने के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। करना तो आप ही को होगा, ठीक है। मैं वही किया, मैं अच्छे से सीखा, सीखने के लिए मेरे को बेसिक मटेरियल मैं भी ट्राई किया, यूट्यूब में ट्राई किया, मैं भी सोचा क्यों मेरे को पैसा देना है, बट पैसा तो कहीं ना कहीं मेरा बर्नआउट हो ही जा रहा था। मैं भी बूस्ट भी कर रहा था, अगर 100 रुपीज का भी बूस्ट करूँ, एक भी लोग नहीं आए, और उसको 5 दिन चलाओ 500 रुपया बूस्ट हो गया, एक भी लोग नहीं आया। और वेरी रेयर somebody will come from that boost and मेरे को लाइक करके चला जाएगा, उसको बोलेगा बहुत सारा मेरे को लाइक्स मिलेगा। लाइक से घर थोड़ी चलता है ना। आपको यूनिक प्रॉपर सेल्स चाहिए, प्रॉपर सेल्स चाहिए, आपका प्रोग्राम लेने वाला लोग चाहिए। यू मे हैव ए वेरी गुड बिरयानी, बट जिसके पास जा रहे हो उसको अगर भूख ही नहीं है तो वो खाएगा नहीं ना। तो भूखा आदमी को ढूंढने के लिए हेल्प करना है तो कहीं ना कहीं आपको इन्वेस्ट करना है। आइदर यू बर्न मनी एंड ट्राई मेनी हिट एंड ट्रायल मेथड और यू इन्वेस्ट समवेयर। तो बहुत ज्यादा रीजनेबल है टीजीओ का जो प्रोग्राम है, बहुत अच्छा रीजनेबल प्राइस उसमें है अभी भी, एट प्रेजेंट ऑल्सो, जितना भी होगा। क्योंकि मार्केट में बाकी जितना भी एड्स आ रहा है उनके साथ ऑब्वियसली एज ए कोच मेरे पास भी एड्स आता है, वी आर द कोचेस ऑफ द कोचेस, आप हमारे साथ में करो, हम लोग आपको ये कर देंगे, 6 महीने में आपको 1 करोड़ में पहुंचा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो ऑब्वियसली ठीक है, बट मे बी 1-2 कोचेस उसमें गया भी होगा। हिटिंग 10 लाख रुपीज ए मंथ
पर्सनली एक अकेला आदमी अगर सोचेगा कि हाँ मेरे को नेक्स्ट मंथ, वो इट नीड्स ए प्रोसेस। मैं भी हिट कर सकता हूँ बट इट नीड्स ए प्रोसेस। वो प्रोसेस करना उतना आसान नहीं है। हाँ, सबको जैसे ना IAS के लिए बहुत सारा एक्सपीरियंस है, पास तो इतना ही होता है ना, इधर भी वही है। हाँ, यहाँ पे आप भूखा नहीं मरोगे अच्छे से। यू मे बी आप एकदम टॉप कोच नहीं बनोगे तो भी, लेकिन अच्छा कोच बन जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर थोड़ा बहुत एबिलिटी है, कोचिंग एबिलिटी ठीक ठाक है, तो मेटा को कैसे यूज करना है प्रॉपरली वो ठीक से सीख जाएंगे। परफेक्ट स्टफ। एंड मेटा के आने के बाद लेट्स से अगर कोई ऐसा कोई कोच देख रहा है इस पॉडकास्ट को जिसने मेटा एड्स कभी नहीं चलाया, राइट, वो बोल रहे हैं कि अभिषेक को तो पहले से एक्सपीरियंस है मेटा एड्स चलाने का, तो क्या मेरे लिए ये प्रोग्राम सूटेबल होगा? मैं सिर्फ मेटा एड्स चलाना सीखूंगा या मुझे पूरा समझ में आएगा कि कैसे बिजनेस बिल्ड करना है, सेल करना है एंड ऑल दैट? तो व्हाट इज योर एडवाइस टू दैट पर्सन हु इज वाचिंग इट? परहैप्स ही इज सेइंग कि यार ये तो अभिषेक इज गिफ्टेड बिकॉज़ ही ऑलरेडी न्यू मेटा एंड ही ऑलरेडी हैड सीन YouTube में कैसा करना है। देखो, गिफ्ट तो हमारा सभी का ही कुछ ना कुछ है। अभी क्लास में जो फर्स्ट बॉय होता है ना, सभी कोई फर्स्ट बॉय नहीं हो सकता ना, ठीक है, बट एग्जाम तो सभी अपीयर करता है। उसके लिए आज के डेट में 100% ट्यूशन भी सभी लोग जाता है ना। बहुतों को पता है कि मैं फेल भी हो जाऊंगा, उसके बाद भी ट्यूशन जाता है। तो ऐसे टाइप की सोच लो, क्या पता पास हो जाओ। करना तो देखो, यू विल बर्न योर मनी। अगर करना है आपको, यू विल बर्न योर मनी। और ऑनलाइन में एक फायदा है, आप अगर सोच रहे हो मैं ऑफलाइन में करूँ, जिम में करूँ, नो प्रॉब्लम, करते रहो। बट वहाँ पे जिम में रेदर एक कोचेस के लिए सैचुरेशन होने का टाइम ज्यादा है, बिकॉज आप एक दिन में पर्टिकुलर इतना ही लोगों को कर पाओगे। आपके पास 24 आवर्स ही है, जिसमें से एटलीस्ट 5 से 6 घंटा आपको सोना है। मैं कम करके बता रहा हूँ, 5 घंटा आपको सोना है, 2-3 घंटा आपको आता है। आप अगर 15 घंटा भी काम किया, 10 घंटा सोने और आपका काम के लिए, तो 15 घंटा में आप मे बी 15 आदमी को ट्रेन कर पाओगे। हाँ, बहुत सारा काम किया, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। बट फिर भी मैं एक मतलब यूटोपियन सिचुएशन ले रहा हूँ। 15 आवर्स काम कर रहा है, 15 आवर्स में एक कोच 1,50,000 बना रहा है। क्योंकि लोग आगे एकदम आपको बहुत ही वो सेलिब्रिटी कोच टाइप बहुत ही कम है जो आके आपको 1 लाख रुपए अकेला बंदा देके चला जाएगा जिम में आके 1 घंटा आपके साथ रहने के लिए। तो वहाँ पे एक सैचुरेशन होने का चांसेस है। आप जब लीव जाओगे, आप जब वेकेशन में जाओगे, उस टाइम पे 10 दिन 15 दिन के लिए आपका पूरा रेवेन्यू बंद है। यहाँ पे मैं एक लैपटॉप लेके उसमें चला गया, मेरे पास मोबाइल पे मेरा DM दिखना आता है, मैं बात कर लिया, सब कर लिया। आई एम ऑलवेज कनेक्टेड विद देम। मैं कहीं पे भी हूँ, मैं घर से कर रहा हूँ या बाहर जाके पार्क में बैठा हूँ, कस्टमर डजंट नो, उनको बस टाइम पे मैसेज चाहिए, है ना। तो ऑनलाइन हमेशा आपको ज्यादा देगा। और ऑनलाइन में करना चाहोगे तो अभी आप TDO नहीं करोगे, YouTube करोगे। YouTube फ्री है बट नथिंग इज फ्री। कहीं ना कहीं आपका टाइम जा रहा है, उस हिसाब से प्रोपोर्शनेटली आपका ग्रोथ डिले होगा। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। बेटर टू टेक ए क्या बोलेंगे, थॉटफुल चॉइस। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक। No, it was amazing talking to you, Abhishek. I won't take a lot of your time also. But amazing to see your learning from you about your own journey, right? It's been some time that we also connected. But my last question for you is, what is the next steps for Abhishek? How is he looking the next August, which is coming in 2026? Where do you see yourself in another 1 year from now? Now that you've already hit almost like 2 lakhs rupees, figure. Maybe I can move into मतलब क्या बोलते हैं, I can move into helping other coaches also. वो भी है इस thought process में। Yeah. Let's see. क्योंकि मेटा ऐड अच्छे से सीख गया, why not to teach those things also to others? वो भी एक ऑप्शन है। Yeah. Obviously, and लास्ट 1 महीने से NRI क्लाइंट्स भी अच्छे से मेरे को मिल रहा है। मतलब मेटा ऐड अगर ठीक से चलाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से NRI क्लाइंट्स को मैं अच्छे से हिट कर पा रहा हूँ। I can reach them properly. Okay, so you're running as outside of India as well now, Meta ads, right? अभी at present अगस्त से मेरा इंडिया का एड मैं बंद कर दिया, बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजन। अभी फेस्टिवल टाइम पूरा आ रखा है, सभी कोई सोच रहा है 2-3 महीना बाद करेगा। अभी तो फेस्टिवल है ही, अभी तो मोटा होना है ही कैसे भी। ठीक है, ठीक है ना। कोई आ भी जा रहा है, ऐसा नहीं है। बट मेरा कतार, बहरीन, मालदीव्स, USA, कनाडा, ये सब जगह पे ऐड चल रहा है। And are you getting leads? Are you getting inquiries? Are you getting calls?
हाँ, मैं बोला ना, मेरा लास्ट मंथ का जो था इस महीने का 20th तक वो रेवेन्यू मेरा क्रॉस हो गया, so you can understand. लास्ट मंथ का टोटल रेवेन्यू से इस महीने का 20th तक मेरा वो रेवेन्यू क्रॉस हो गया. और lesser clients and more value also, right? Yes. Amazing Abhishek, very interesting, and all the very best for your journey, and thanks for inspiring so many people who are going to watch this podcast and learn from your journey. Yes, thank you, my pleasure.